Hello student, how are you all? I hope you all are fine. Let us continue chapter number 2. Name of the chapter is biological classification. Okay बेटा, अभी ये chapter का end आ रहा है. Okay, the most important theory of this chapter is viruses. Okay, every year one MCQ, one NEET MCQ comes from this topic. Okay, एवरी ईयर नीट में एक एमसीक्यू इसमें से आता ही है, डेफिनेटली आता है. ओके बेटा, तो चलो आ जाओ. वायरसेस सबको पता ही है. अभी कौन से वायरस ने सबकी बैंड बजा रखी है? बोलो. यस, कोरोना है ना, डेंजरस वायरस है ना बेटा. कोई बात नहीं, उसको भी कंट्रोल कर देंगे, हम इंडिया वाले हैं, है ना बेटा. ओके चलो आ जाओ. दिख रहा तो व्हाट इज वायरसेस? क्या वायरसेस लिविंग थिंग है? क्या वायरसेस नॉन लिविंग थिंग है? टेल मी. ओके, वायरसेस का सेल है. वायरस हैविंग सेल? नो, viruses is not living thing. It is not non-living thing and it is not made up of cell. तो बेटा ये वायरसेस है क्या? उसकी डिटेल स्टडी करते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट. चलो आ जाओ. दिख रहा? कम ऑन. So the viruses are non-cellular organism. It is not made up of cells. Because the cell having cell membrane, okay, typical cell having cell membrane. Inside cell membrane there is a cytoplasm and the well developed nucleus. Nucleus भी होना चाहिए सेल के पास. Cell having membranous organelles, but membranous organelles are absent in viruses. Okay, clear? There is no cell membrane, bhai. Clear? Okay, चलो. तो viruses is non-cellular organism. वो सेल से बना नहीं है. They have inert. बना किससे है? Inert. Inert का मतलब non-reactive crystalline structure outside the living organism. So when viruses are present in atmosphere, it behave like non-living thing. जब viruses atmosphere में होता है, air, water, soil में होता है, तो वो as a non-living thing जैसे behave करता है. समझ में आया? It is a inert crystalline structure. It is non-reactive structure when it is present outside the living organism. But once they infect the cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves and kill the host. Once viruses infect the cell, virus कोई सेल को इन्फेक्ट करता है. सेल प्लांट का भी हो सकता है, एनिमल का भी हो सकता है. Once viruses infect the cell, that it take over the machinery of the cell. Viruses क्या करेगा? बॉस बन जाएगा सेल को इन्फेक्ट करके, और सेल के जो भी मशीनरी है उस पर हावी हो जाएगा. क्लियर? सेल होगा हमारा बॉडी का, लेकिन काम किसका करेगा? वायरसेस का. समझ में आया? तो once virus infect the cell, they take over the machinery of the host cell. Okay, clear? अब क्या करेंगे? मशीनरी हमारे सेल, मशीनरी हमारे सेल की, बट काम करेगी वायरस का. ओके, ईच सेल प्रोड्यूसेस thousands of viruses. ओके, कि भाई वायरस इन्फेक्शन हो गया, अब वो सेल की मशीनरी वायरस ने हायर कर दी और वायरसेस ने अपनी ही कॉपी स्टार्ट करवा दी. समझ में आया? क्लियर? विदिन फ्यू मिनट्स, विदिन फ्यू आवर्स thousands copy of viruses are formed. बहुत सारी viruses की कॉपी बन गई. क्लियर? फाइनली viruses की कॉपी बन गई, फिर बाद में क्या होगा? viruses की that cell, जो सेल ने न्यू viruses फॉर्म किए, वो सेल लास्ट में टूट जाएगा, बेचारा किल हो जाएगा. and large number of viruses are released which infect other healthy cell. और ऐसे इन्फेक्शन स्प्रेड करेगा पूरे बॉडी में. समझ में आया? क्लियर बेटा? ओके, when virus is present outside the living organism, it behave like a inert crystalline structure. Okay, non-living thing के जैसे behave करता है. But once they infect a cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves and kill the host. Clear? So we can say that viruses is the connecting link between living and non-living organism. When it is present in atmosphere, it is non-living. But once it's present inside the host cell, it behaves like a living thing. Okay, so virus is a connecting link between living and non-living organism. Important statement.
नीट के अंदर बैठा स्टेटमेंट आता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हिस्ट्री ऑफ वायरसेस। कि वायरसेस के बारे में फर्स्ट किसने सब डेमोन्स्ट्रेशन किया, नेम किसने दिया वायरसेस को, फर्स्ट टाइम आइसोलेट किसने किया, ओके वो स्टडी करते हैं। ये साइंटिस्ट दे आर मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट। एवरी ईयर एक साइंटिस्ट का आता ही है। चलो आ जाओ बेटा, पास्चर। फर्स्ट साइंटिस्ट इज पास्चर। द नेम वायरस, वायरस का मतलब होता है वेनम, पॉइजन। ओके, वायरस का मतलब है, वायरस इज अ ग्रीक वर्ड बेटा। ओके, ग्रीक लैंग्वेज में उसका मतलब होता है वेनम, जहर, पॉइजन। द नेम वायरस मींस वेनम और पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाय व्हिच साइंटिस्ट? पास्चर। ओके, याद रखना है पास्चर ने वायरस को कौन सा नाम दिया? वेनम। ओके, पॉइजनस फ्लूइड नाम दे दिया किसने? पास्चर ने। वायरस नाम रखा। क्लियर? मोस्ट इंपोर्टेंट। बाद में कौन आया बेटा? डीजे इवानोव्स्की। याद रखना है साइंटिस्ट का नाम ईयर के साथ। डीजे इवानोव्स्की। He recognized certain microbes as a causative agent. Causative agent means it causes disease. Causative agent of mosaic disease of tobacco. D.J. Ivanovsky, okay, was the first scientist who recognized that some microorganism, micro means small size organism, okay, वो disease करता है। Clear? किसका causative agent है? It is a causative agent of mosaic disease of tobacco. ओके, टोबैको प्लांट के अंदर मोसोइक डिजीज करता है। ओके, और वो साइज में एकदम स्मॉल है, इसलिए उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला। बाद में पता चला कि डिजीज का नाम है, क्या है? टोबैको मोसोइक डिजीज, एंड द वायरस इज नोन एज टीएमवी, टोबैको मोसोइक वायरस। याद रखना है। क्लियर? टीएमवी, टोबैको मोसोइक वायरस। टीएमवी वर्ड किसने दिया था? डीजे इवानोव्स्की ने। Okay, tobacco mosaic virus is a causative agent of mosaic disease of tobacco plant. Okay, बेटा, इतना क्लियर हुआ? He also demonstrated that the size of viruses are very smaller, so it can even pass through bacteria-proof filter. समझ में आया? क्लियर? सपोज ये फिल्टर है, ये फिल्टर है, किसको फिल्टर करता है? बैक्टीरिया को। हमारे पास कोई लिक्विड होगा, सपोज उसके अंदर बैक्टीरिया मिक्स हो गई, तो बैक्टीरिया ऊपर रह जाएंगे। सपोज ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ऊपर रह जाएंगे और फ्लूइड नीचे चला जाएगा। बट द साइज ऑफ वायरस इज वेरी स्मॉलर। वायरस कितना है? इतना छोटा सा है। सो इट कैन इजीली पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। जो फिल्टर में से बैक्टीरिया पास नहीं हो सकता, वो फिल्टर में से कौन पास हो सकता है? वायरसेस पास हो सकते हैं। So we can say that the sizes of the viruses are very smaller than bacteria. Bacteria की size माइक्रोमीटर में होती है, याद रखना, नीट एमसीक्यू। The size of bacteria is in micrometer, whereas the size of viruses is in nanometer. किसमें होती है बेटा? नैनोमीटर में होती है। क्लियर? इतना समझ में आ गया है? ओके बेटा, क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट साइंटिस्ट इज M.W. Bacherin। ईयर भी याद रखना है 1898। साइंटिस्ट का नाम M.W. Bacherin। देखो M.W. है, नीचे W.M. है। नीट के अंदर आपको कंफ्यूज कर सकते हैं आगे पीछे करके। W.M. स्टैनली के साथ आता है और M.W. Bacherin के साथ आता है। क्लियर? ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट कि भाई M.W. Bacherin ने क्या किया कि जो टोबैको प्लांट को डिजीज हुआ था, उसमें से लिक्विड एक्सट्रैक्ट किया, और वो लिक्विड के अंदर कौन थे? वायरसेस थे, और वो लिक्विड किसके अंदर इंजेक्ट किया? हेल्दी प्लांट के अंदर, तो हेल्दी प्लांट को भी डिजीज हो गया। ऐसा किसने प्रूफ दिया? M.W. Bacherin ने। क्लियर? आ जाओ बेटा। ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको could cause infection in healthy plant. ओके, जो टोबैको प्लांट के अंदर इन्फेक्शन किया था, कौन से वायरस ने? टोबैको मोसैक वायरस ने। उसमें से लिक्विड एक्सट्रैक्ट किया, अलग किया, और वो लिक्विड का इंजेक्शन दिया हेल्दी प्लांट को, तो क्या हुआ? हेल्दी प्लांट को डिजीज हो गया। यस, क्लियर? एंड कॉल्ड फ्लूइड, जो फ्लूइड उसने निकाला था उसका नाम ये दिया, कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन। Who
नेम कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम। ओके, कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम नाम किसने दिया? आंसर आएगा एम.डब्ल्यू. बैजिलिंग ने दिया। यस, W.M. नहीं, M.W. बैजिलिंग। ही गेव नेम कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम कि ये वायरसेस का जो फ्लूइड है वो कंटाजियस है, कंटाजियस डिजीज करता है। ओके, कोई प्लांट से टच करेगा ना तो प्लांट को भी डिजीज हो जाएगा। समझ में आया बेटा? क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट साइंटिस्ट नाम क्या है? W.M. स्टैनली, ईयर 1935, याद रखना ये। ओके, W.M. स्टैनली ने क्या किया? तो फर्स्ट टाइम वायरस को क्रिस्टलाइज कर दिया। समझ में आया? वायरस को फर्स्ट टाइम क्रिस्टलाइज किसने किया? तो आंसर क्या आएगा बेटा? W.M. स्टैनली। ओके, चलो आ जाओ। He showed that viruses could be crystallized. ओके, उसको क्रिस्टल के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में किया जाता है। एंड क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ, और क्रिस्टल के अंदर हमें क्या देखने मिला? क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन। क्रिस्टल के अंदर बहुत सारा प्रोटीन होता है। क्लियर? समझ में आया? व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टैनली? He showed that viruses could be crystallized. उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, in which large amount of proteins are present. Clear? Okay बेटा, चलो. Now, do you know about virology? The science to study viruses, it is known as virology. कि जो साइंस में कंटिन्यूस वायरस के बारे में ही स्टडी आती है, that is known as virology. It is a branch of science which deals with the study of different viruses. It is known as virology. Okay बेटा, चलो. Last 2 points. Viruses, they are inert outside the host cell. कि host cell के बाहर तो वो inert होते हैं, non-reactive होते हैं. But once they are present inside host cell, they definitely cause disease. Okay बेटा? Viruses are obligate parasite. ये भी बैठा सेंटेंस आता है. वायरसेस के बारे में ये बैठा सेंटेंसेस आते हैं कि they are obligate parasite. कि उसको सर्वाइव करना है तो उसको होस्ट डेफिनेटली चाहिए. पैरासाइट मींस दे प्रेजेंट इनसाइड इन लिविंग होस्ट. डेड होस्ट के अंदर ग्रो नहीं होगा. समझ में आया? क्लियर? डेड बॉडी के ऊपर कभी वायरसेस नहीं होंगे. दे आर रिक्वायर्ड लिविंग होस्ट. ओके, सो द वायरसेस आर ऑब्लिगेट. ऑब्लिगेट का मतलब कंपल्सरी पैरासाइट्स होते हैं. वो अपने आप खुद का कुछ नहीं बना सकते. ओके, वो दूसरे की मशीनरी ले लेते हैं, दूसरे पर काबू कर देते हैं और अपने नंबर इंक्रीज करते हैं. समझ में आया? ओके, सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक. ओके बेटा? Hello students, I am going to discuss last topic of chapter number 2. ओके बेटा, ये चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक है लाइकेन. क्लियर? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी, नीट के लिए भी. ओके, ऑन. तो व्हाट इज लाइकेन? इट इज अ symbiotic association between two organisms. One organism is algae and second organism is fungi. Clear? Okay, so what is lichen? Lichen is symbiotic association of algae and fungi. Okay, it is a mutual relationship. Lichen is the example of mutualism. किसका example है lichen? Mutualism का. Lichen is the example of mutual relationship, beneficial relationship. उसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म. दूसरा नाम है उसका सिम्बायोसिस. It is a symbiotic relationship between two different organisms. One is known as algae. Here the algae is known as phycobiont. जो algae है उसको क्या बोलते हैं बेटा? phycobiont. Phyco means algae. Biont means ये एसोसिएशन में जो लिविंग पार्टनर है एक, it is algae और उसको बोलते हैं phycobiont. And second is fungi. Fungi को बोलते हैं mycota. Okay.
ओके, एंड द अदर पार्टनर इज ऑल्सो नोन एज माइकोबांड. फंजाई को बोलते हैं माइकोबांड, एल्गे को बोलते हैं फाइकोबांड. समझ में आया? दिस फाइकोबांड आर एल्गे, दे आर ऑटोट्रॉपिक, मतलब they prepare their own food by photosynthesis. अपना फूड बनाता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू. So they are known as autotrophic partner. Clear? Algae provide nutrition to fungi. समझ में आया? They prepare food for fungi. समझ में आया? Very simple topic. Fungi is known as mycoband and it is heterotrophic. फूड नहीं बनाता है तो कुछ तो करता होगा ना. हाँ ना, करता है ना. They absorb nutrients and minerals from the soil and provide to algae. कि soil में से वो किसको absorb करता है? minerals को, nutrients को, water को, और किसको provide करता है? algae को. algae fungi को क्या देता है? food देता है. सामने fungi algae को क्या provide करती है? nutrient, minerals and water. Clear? So both get benefit from each other. Such a beneficial relationship is known as mutualism, symbiosis भी बोलते हैं उसको, symbiotic relationship भी बोलते हैं. समझ में आया? Clear? They cannot survive in the absence of each other. कि भाई लाइकेन के अंदर एल्गे के बिना फंजाई को नहीं चलेगा, फंजाई के बिना एल्गे को नहीं चलेगा. भाई दोनों 50-50 वर्क करती है. समझ में आया बेटा? Clear? Okay. Now lichens are, ये 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड का कॉमन एमसीक्यू क्वेश्चन है जो नीट में बहुत आता है. तो लाइकेन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर. कि भाई सपोज हम कोई एरिया में गए, वो एरिया पॉल्यूटेड है कि नहीं, वो हमें कैसे पता चलेगा? सपोज ट्रीज पे व्हाइट कलर का ग्रोथ होगा, ट्री की जो ट्रंक होती है उस पर व्हाइट कलर का ग्रोथ होगा तो वो लाइकेन होता है. If lichen are present in trunk of the tree, then that area is very pure. उसकी एयर एकदम प्योर होगी, no pollution. समझ में आया? If lichens are present in particular area, तो हम क्या बोल सकते हैं? वहाँ पे pollution नहीं है. If lichens are absent, मतलब वहाँ पे full pollution. समझ में आया? So we can say that lichens are very good pollution indicator because they cannot grow in polluted area. polluted area में कभी lichen grow नहीं हो सकता है. तो if the lichen is present, non polluted area. If the lichen is absent, most polluted area. समझ में आया? आज का टॉपिक समझ में आया? The study of lichen is known as lichenology. इसका symbiotic relationship है two organism, one algae, second fungi. algae को क्या बोलते हैं? फाइकोबांड, which carry out photosynthesis. Autotroph बोलते हैं उसको. Prepared food for fungi. Second, fungi, it is known as mycoband. Heterotrophic, दूसरे पर डिपेंड है. fungi फूड के लिए किस पर डिपेंड है? एल्गे के लिए. So they are heterotrophic. क्या करती है फंक्शन? Absorb nutrients, minerals and water from the soil and provide to algae. Last question. Lichens are very good pollution indicator. Why? Because lichen can never grow in polluted area. समझ में आया? इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 एकदम फिनिश हो गया. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था बेटा. 5 MCQ नीट के अंदर ये चैप्टर में से आते हैं, है ना? क्लियर? 3 to 4 MCQ सीधा NCERT में से आते हैं. कभी कभी 5 years में एक आध MCQ बाहर से आ जाता है ये चैप्टर में, बाकी तो अंदर के ही होते. तो बेटा मस्त चैप्टर प्रिपेयर करना, 10 times ये चैप्टर रीड करना. जितने बार मल्टीपल रीडिंग करोगे ना बेटा, कुछ ना कुछ आपको नया जरूर मिलेगा अंदर. समझ में आया? क्लियर? आफ्टर ऑल NCERT, बायोलॉजी की NCERT हमारी गीता माँ है, उसको कंटिन्यू रखना. ओके बेटा, चलो मिलते हैं.